basically, you have been into numerology, crystals, and Vastu for a long time now. So I want to know more about it. Like, how are these things different from each other? So numerology is basically numbers, and numbers are what they represent planets. You can decide your life path number, your personality, your characteristics, your career can be decided by this help of your date of birth through numerology, and anything that you want to know about your life. Today's generation are not bothered about anything. So they are just looking for someone who is really very perfect. जो कभी होता नहीं है. So, Yeah. there is nobody perfect. So are you giving 100%? First ask that question to yourself. If you are not, then how can you expect from that person? Thank you so much, ma'am, for coming on our podcast. So basically, you have been into numerology, crystals, and Vastu for a long time now. So I want to know more about it. Like, ये शुरुआत कहाँ से हुई? Like, आपका interest कैसे develop हुआ? And इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा detail में, like, how are these things different from each other? सो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो पहले से ही था न्यूमरोलॉजी में. एंड सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो साइंस है या ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी चूजेज यू Okay. to follow this path. You cannot choose this path. You are Okay. destined to do this. चाहे आप फिर आपके अर्ली एज में आपको ये पाथ मिल जाए या मे बी लेट, बट यस दिस पाथ विल चूज यू. एंड you can say a divine energy guides you to guide people. So numerology is basically numbers. Yeah. And numbers are what they represent planets. Right. All these planets, like जैसे कि number 1 is Surya, number 2 is moon. Yeah. So similarly, there is made a Loshu grid in numerology. जिसके थ्रू you can decide your life path number, your personality, your characteristics, your career can be decided by this help of your date of birth through numerology, and anything that you want to know about your lives, you can say predictions जिसको हम बोलते हैं, that can be done through numerology. Got it. Now when we give some say remedies, Mm-hmm. so we help our clients by giving them some crystals, because crystals are earth element. They help Okay. you to heal within. Okay. So maybe you are sometimes not able to do some of the remedies, हम नहीं ज़्यादा कर पाते हैं. तो to cleanse your aura, basically, Mm-hmm. crystals help you to uh, remain purified and keeps you away from the negative energy. That's what I Okay. can say. Okay. So, like numerology and crystals are, which means they are interconnected in some way? No, no, not at all. Numerology Okay. is totally different. Mm-hmm. But with my personal experience, I guide my clients through crystal therapy Okay. as as a remedy. Got it. And how does these crystals like protect you? जैसे कि अगर उनके numbers में there are some like जैसे कि कुछ numbers में there are some kind of anger issues as well, temper issues as well. Do you think like how does these crystals heal you? And also अगर जैसे कि रुद्राक्ष, I'll tell you कि रुद्राक्ष को जब आप पहनते हो there are some pros and cons as well of wearing it. ऐसा मैंने सुना है. But you Okay. can you can talk about it as well. तो crystals के बारे में और क्या do you think that people should know? As I told you that crystals are earth element. ठीक है. हर एक क्रिस्टल की अपनी एक वाइब्रेशंस है, एक फ्रीक्वेंसी है और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. एंड दे बिलोंग टू पर्टिकुलर यू कैन से फैमिली. जैसे कि एमेथिस्ट है, सो इट्स इन पर्पल कलर. Okay. ठीक है. तो उसको पहनने से योर ऑरा विल प्योरली इट विल बिकम सो प्योरिफाइड कि मैं क्या ही बताऊँ. उसको पहनने से ही ओनली आई कैन एक्सप्रेस दैट. तो Got जो भी माई ऑडियंस या जो भी मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने एमेथिस्ट पहन रखा है, दे must be resonating it with what I'm trying to say. So there are many crystals, number of crystals are found. So when I talk about rudraksh, so first of all I would like to tell you that rudraksh do not belong to this planet. Okay. Yeah. So rudra means shiv Right. and aksh means eyes. तो ये शिव की eyes हैं. So once upon a time when Lord Shiva was meditating, so he kept his eyes open for many years. Yeah. ठीक है. बहुत सालों तक उन्होंने अपनी आंखें जो है खोल करके मेडिटेट किया हुआ था. तो जब उन्होंने बंद की तो एक करुणा भाव में उनके आंखों से है ना आंसू निकले. तो ये आंसू जो हैं वो अर्थ पर गिरे और Right. तब दिस रुद्राक्ष ट्री वाज एक्चुअली ग्रोन. Okay. तो अकॉर्डिंग टू मी हर एक हिंदू को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए.
Of course depends on their numbers, their birth Yeah. charts. So देख करके हमें Mhm. you should consult a proper person before wearing a rudraksh. Mhm. But there are no pros and cons. The only thing that you remember is that when you are having non-veg or consuming alcohol, Yeah. बस उसको उतार करके रख दो and then next day again you can wear it. Okay. Got Young it. generation especially, they should wear rudraksh because it creates a energy field around you which helps you to protect from the negative energies. So slowly and gradually it will happen. You will follow the correct path, you will get the clarity of your mind. It is very difficult to describe the properties of rudraksh Yeah. in this Yeah. 2-3 minutes. Yeah. So rudraksh पहनना is really very important. Got it. So जैसे कि रुद्राक्ष के there are some pros and cons that you said कि इसमें इस टाइम पे नहीं पहनना चाहिए और crystals में भी ऐसा है? No, और- crystals are very simple. First of all, if you are wearing it for the first time, you don't have to remove it till Okay. 41 days. That is what I always say. Okay. Because it takes time to connect to your energy. Mhm. And then, as they also attract negative energy. So we have to cleanse it. We have to charge them in the moonlight. You can also charge them in sunlight. So there is a process that we have to follow. कि when there is a पूर्णिमा, फुल मून हम जिसे कहते Yeah. हैं, उस वक्त हमें गंगा जल से या गुलाब जल से धो करके बस उसको फुल मून लाइट में रख देना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन वेयर इट प्रोवाइडेड देयर इज नो lunar eclipse that night. Okay. Yeah. Similarly, one remedy here, one more I would like to tell you is that same way you can energize your any stone. Okay. You can energize whatever you want in moonlight. Moonlight is that powerful. So you can also energize the water you drink. I'll tell you. Oh. Yes, yes. Okay. So if you are feeling low, Mhm. depressed, Mhm. or there is some problem that is going Yeah. on in your say heart and mind and body, तो क्या करना है कि you have to take some water in a glass bottle. Okay. Okay. Mhm. And the lid should be of course wooden lid should be there. There is no metal to be there. And उसको पूरी रात भर वहाँ रख दो. Okay. And next day उसको next day से full month you can have it sip by sip. Oh. And you see that how your जो जिसको बोलते हैं बिकॉज चंद्र क्या है, मून क्या है, इट इज मन का कारक है ना. तो हमारा मन जब विचलित होता है तो वो मून की एनर्जी लेने से योर मून प्लैनेट बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बर्थ चार्ट थ्रू Okay. दिस वाटर. That's amazing. So ma'am, जैसे कि you mentioned about numerology as well and like हर एक नंबर की अपनी एक characteristic Vibration. रहती है, vibration रहती है, एक power रहती है. Yes, yes. What do you think which number is the most powerful number of the numerology? Or what are your thoughts All on that? numbers are powerful. Okay, All that's good. numbers are powerful. किसी एक नंबर ना होने से लोशो ग्रिड में that person has to Mhm. face the difficulties of that planet. Okay. Okay, so of course you can get the energies by doing some remedies. But here I feel like which number I should say. But I always get fascinated by number 8. Number 8. Yes. Okay. नंबर 8 से बहुत लोगों को डर लगता है. शनि का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, स्लो नंबर है, सैटर्न प्लैनेट है. Yeah. बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट, है ना. वो सिर्फ बोलता है फॉलो द डिसिप्लिन. सैटर्न सेज फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो द राइट पाथ, अपना कर्मा करो, अपने पेरेंट्स को जो है रिस्पेक्ट करो, Mhm. एंड शनि वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर. क्योंकि Okay. पापा ने तो कभी अपनाया ही नहीं सूर्य ने. Right. यू मस्ट बी नोइंग द स्टोरी लाइक है ना, सूर्य No, और but if you शनि. can tell it, सूर्य it will और be- शनि की कभी नहीं बनी. Okay. सूर्य इज हिज फादर, है ना. तो ही वॉज वेरी मच क्लोज टू हिज मदर. ठीक है. तो अगर आप अपनी माँ के पैर छूते हो या माँ के क्लोज रहते हो तो शनि विल गिव यू फेवरेबल रिजल्ट्स 100%. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ फाइनेंस. It is also a number of, you can say it is an infinity, right? Yeah. Completion. So I just get very much attracted towards number 8. But discipline you should always follow. राइट. मैंने एक और बात शनि के बारे में सुनी है, लाइक आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. लाइक इट सेज दैट शनि आपसे बहुत मेहनत करवाता है, Yes, of course. बहुत हार्ड वर्क कराता है, एंड वंस यू क्रॉस दैट देन ओनली यू गेट द लाइक द रिजल्ट्स ऑफ इट. Karmic एंड लाइक number. 2024 वाज द ईयर ऑफ शनि. हम्म, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि इस साल 2024 में जिनका लास्ट ईयर बहुत मेहनत किया है, लाइक जितना वो लोग करते हैं उससे ज़्यादा किया है, देन इट वाज गुड फॉर देम हम्म. स्पेशली. सो मेहनत तो कराएगा ही, स्ट्रगल तो करवाएगा ही, चलाएगा वो, दौड़वाएगा, बट
द थिंग इज कि रिजल्ट भी उतने ही पावरफुल पावरफुल देता होते हैं, है. हाँ. एंड 2024 के बारे में बहुत सुना था कि भाई ऐसा साल है वैसा साल है, बट जिसने Yeah. स्पिरिचुअल पाथ फॉलो किया है, या जिसने थोड़ी बहुत शनि की रेमेडीज की है, कुछ दान धर्म किया है, उनके लिए शनि का साल जो है वो दिसंबर में उनको देकर ही गया है. दैट्स अमेजिंग. सो मैम, वैसे हम शनि की बात कर रहे हैं तो आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट साढ़े साथी एज वेल. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, बिकॉज पीपल टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे कि साढ़े साथी आ गया, बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. Of course. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट साढ़े सात ही मीन 7.5 years जो है उनको ये स्ट्रगल रहता है, यू नो, इन देयर बर्थ चार्ट. बट अगेन आई विल से कि कंसल्ट अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर हियर, है ना. जैसे Yeah. कि हमारा डॉक्टर होता है पर्टिकुलर, या कि कोई फैमिली डॉक्टर होता है, यू नो, वी ऑल हैव, कि हम उसी के पास जाते हैं एंड वी ओनली Yeah. टेक मेडिसिन फ्रॉम दैट डॉक्टर. सो व्हाई नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, व्हाई डोंट यू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर. ठीक है. राइट. तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास पहले तो हमें अपनी महादशा और अपनी साढ़े साथी जो भी है वो एक कुंडली दिखा करके अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास से अपनी रेमेडीज हमेशा कराते रहनी चाहिए. एंड इट इज़ नॉट कि एक बार दिखा दिया और ये स्टोन पहन लिया तो खत्म. इट्स Right. नेवर लाइक दैट. एवरी 6 months यू हैव टू कंसल्ट योर एस्ट्रोलॉजर, गॉट इट. बिकॉज ग्रहों की चाल तो चल रही है, प्लैनेट्स आर मूविंग, प्लैनेट्स थोड़ी क्या अपनी जगह पे खड़े हैं. तो उसी तरह से यू नो योर कुंडली में भी यू विल फाइंड द चेंजेस एवरी, Okay. या एवरी यू कैन से 6 months और 1 year, एटलीस्ट साल में एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए. तो साढ़े साथी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं बाय योर एस्ट्रोलॉजर, टू फॉलो दैट. एंड हमेशा एक नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ओके. हर एक महादशा का और यू नो Okay. साढ़े साथी का, अंतरदशा का. तो शनि का बस यही रूल है कि यू हैव टू रिमेंबर कि अब तुम कुछ गलत तो नहीं कर सकते हो. अब तुम्हारा जो कैमरा जो है शनि का या भगवान का या Yeah. यूनिवर्स का, अब तुम्हारे पर है. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एंड फॉलो द गाइडलाइंस, एंड देन डेफिनेटली साढ़े साथी जब भी खत्म होती है इंसान की, वो उसको रिजल्ट जरूर देकर जाती है. राइट. सो ये पता, लाइक आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम अ वेरी जनरल पर्सपेक्टिव कि ये पता कैसे लगता है दैट समवन हैज साढ़े साथी इन देयर अगेन. पता कैसे चलेगा कि आपको लाइक कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर के पास जाओगे तो. ओके. Similarly, you have to consult your astrologer. Got it. Nice. So, मैम, you also spoke about वास्तु as well. तो Yes. उसके बारे में मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि पहले के टाइम में, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग वो चीज़ फॉलो कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था, और आज लोग शायद जब ये घर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उन फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करते हैं. यहाँ तक कि मैंने एक बार ये बात भी सुनी थी कि आप घर में आपके कितना स्क्वायर फीट, मतलब एक वास्तु पर्सन ये भी बता सकता है कि इतना स्क्वायर फीट आप कम करोगे तो आपको और अबेंडेंस मिलेगी. वो भी मैंने सुना है. बट अगेन, लाइक यू आर अ बेटर पर्सन टू टेल मी कि हाउ डज वास्तु वर्क्स. राइट. जैसे कि अभी प्रॉपर्टीज के जो है ना दाम जो है उसको तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली टच. तो मैं ये बताऊंगी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर इंसान ले सकता है तो 10-15 हज़ार किसी वास्तु एक्सपर्ट को क्यों नहीं दे सकता है लेने से पहले? दिस इज माई क्वेश्चन ऑलवेज, है ना. इंटीरियर को हम बहुत सारा यू नो रेलेवेंस देते हैं, बट व्हाई नॉट टू द वास्तु एक्सपर्ट? प्रॉब्लम ही क्या है? बिकॉज वास्तु इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ द 5 elements which are in the nature. Don't forget that you are a little part of the universe. एक छोटा सा जर्रा हो यूनिवर्स का, है ना, नेचर का. तो व्हाट इज नेचर? 5 elements. तो आपके घर में भी वो 5 elements जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए. बात रही कि ये हिस्सा को यू नो बढ़ा देना है, दैट इज अबाउट द एक्सटेंशन एंड द रिडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, कि सपोज योर नॉर्थ ईस्ट विच इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, अगर वहाँ पे मान लो वॉशरूम आ गया या फिर किचन आ गया, then it is very difficult. That is a complete Okay. wrong vastu. So there is no remedy to it, first of all. So what we do is we cut that part. ओके. उस पार्ट को ही कट कर दो, ठीक है, कि बिकॉज वी कैन एक्चुअली लोकेट अवर वॉशरूम समवेयर एल्स, राइट. तो वहाँ पर वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए. बट अगेन एक वास्तु एक्सपर्ट को दिखाए बिना, यू नो, उसको प्रॉपर चेक कराए बिना यू शुड नॉट बाय अ प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद भी लिए तो देर आर सम रेमिडीज, देर आर सम चेंजेस, है ना, छोटे छोटे चेंजेस करके लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बिलीव मी. क्योंकि नंबर्स अच्छे होंगे न्यूमरोलॉजी में, आपने क्रिस्टल्स भी पहन लिया, आप सारे रेमेडीज भी कर रहे हैं, मैम हम सब कर रहे हैं, बट वास्तु जो है वो तो पूरा उल्टा पड़ा है आपका. हाउ वुड यू लाइक एक्चुअली प्रॉस्पर? Because each corner of your house represents again a planet and the person that resides in the house.
ओके। यस। सो इसमें जैसे कि टेम्पल पोजीशंस भी बहुत मैटर करती होंगी कि यस, आप पूजागर। हाँ, सो उसके बारे में इफ़ यू कुड टेल मी समथिंग। पूजागर जो है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पूजागर जो है उसको हमें ऐसे दीवार पे जैसे हमारा होता है स्टैंड की तरह, उस तरह से नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर बेस होना चाहिए। ओके। पूजा घर में एक से ज़्यादा किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जो है वो दो हो सकते हैं, एक चांदी के एक मिट्टी के। एंड अगेन देयर इज़ अ प्रोसेस कि दिवाली पर हम अपने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश को चेंज करेंगे सो दैट नई राइट, लक्ष्मी एग्जैक्टली। जो है वो हमारे घर आए। एंड आपका जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं उनकी हमेशा हमें फ़ोटो रखनी चाहिए। एंड द आइडल जिसको हम बोलते हैं वो हमारे थंब से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड ओके। जिस तरह से हम खुद रोज़ नहाते हैं, खुद रोज़ परफ्यूम लगाते हैं एंड रेडी होते हैं या फिर खाते हैं, है ना? उसी तरह से हमारे भगवान को भी हमें सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। फूल से एटलीस्ट गंगा जल से थोड़ा-सा स्प्रिंकल करके हमें उनको नहलाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए एंड येस उनको सुलाना भी चाहिए। ओह, यस। ओके। एंड घर पे कोई भी चीज़ आए जैसे कि द सीज़नल फ्रूट व्हिच कम्स या, फॉर द फर्स्ट टाइम या। और फॉर दैट मैटर एनीथिंग दैट इज़ कमिंग हम्म। टू योर हाउस, सबसे पहले हमें हमारे मंदिर में भोग लगाना चाहिए एंड देन यू सी द चेंजेस इन योर लाइफ। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बट Got it. हमारा ये हो गया है लाइक वी टेक इट वेरी लाइटली। हम अपना सब Right. कुछ कर लेंगे एंड देन हाँ मैंने दिया लगाया था, हाँ मैंने आज अगरबत्ती करी है, मैं ये मंत्र भी पढ़ता हूँ, बट आर यू रियली गेटिंग कनेक्टेड टू इट? या। थोड़ा सा टाइम हमें अपनी पूजा घर को ज़रूर देना चाहिए। राइट। सो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे लक्ष्मी नाराज़ होती है? लक्ष्मी नारायण से 3-4 चीज़ों से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से हो इफ़ यू कुड जाती है। मेंशन अ फ्यू। यस। सो लक्ष्मी का सबसे पहला रूल क्या है, लाइक लक्ष्मी विष्णु भगवान से बहुत ही अपने हस्बैंड से हर कोई कनेक्टेड रहता है जैसे, तो शी विल गो वेर एवर लॉर्ड विष्णु इज देयर सबसे पहले। ओके। नाउ व्हाट इज लॉर्ड विष्णु? इट्स अ प्रोवाइडर, या। गिवर। यू बिकम थोड़ा सा अगर एलिमेंट हम में आ गया कि आई एम द प्रोवाइडर, कि मैं कुछ किसी को दे सकता हूँ, लाइक यू नो अपार्ट फ्रॉम योर योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मेड को मैं अपनी सैलरी दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल से 1000, अगर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, वुडंट यू थिंक दैट हाउ मच हैप्पी शी विल बी? है ना? उसके लिए या। 100 रुपीज़ भी बहुत मैटर करते हैं, एक साड़ी भी राइट। बहुत मैटर करती है। बट वी एक्चुअली लिटिल थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, लाइक या। वी हैव आवर ओन एक्सपेंसेस। तो बी अ प्रोवाइडर। Now, provider to whom? Your maids, your guards, watchmen, providers to those animals like stray dogs, गाय को रोटी खिलाना या फिर बर्ड्स को दाने डालना। आई ऑलवेज से दिस इन माई रेमेडीज दैट जस्ट टेक केयर ऑफ द नेचर। नेचर इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो अगर आप में थोड़ा सा भी विष्णु का अगर बोलते हैं ना तत्व है, तो शी विल नेवर लीव यू। She likes cleanliness. She likes people, guests coming to your place and you serving them या। water, at least ओके। water. ओके। Lakshmi likes like giving it to small kanyas, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि नवरात्रि में हम किसी भी वक्त छोटी कन्या को एक्चुअली बुला करके कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, खिला सकते हैं। सो दिस इज हाउ। एंड लक्ष्मी डजंट लाइक्स केओस, है ना? अच्छा। कि भी छोटी छोटी बात पे लड़ाई ये झगड़ा। लड़ाई झगड़ा करना। शी विल नेवर स्टे विथ यू। शी इज़ वेरी चंचल। शी हैज़ मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गो। सो बी वेरी केयरफुल दैट देर आर सम थिंग्स विच यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। गॉट इट। सो मैम, जैसे कि यंग जनरेशन जो है आज की, दे दे डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस बिकॉज देर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर फ्लडेड ऑन सोशल मीडिया कि समझ नहीं आता कि किस पे बिलीव करे किस पे नहीं। तो यंग जनरेशन्स के लिए सबसे बड़ा जो आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसे मैं कहूँ वो है अटेंशन स्पैन, सबसे बड़ा। एंड क्योंकि वो लोग अगर अपना मन एक जगह पे लगा नहीं पाते, 10 चीज़ों में जाते हैं और 10 चीज़ों की वजह से उन्हें ना प्रोफेशनल सक्सेस मिल पा रही एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केओस इन देयर माइंड। मन की शांति नहीं है जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में हुआ करती थी। तो उस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक वहाँ पे एक रूटीन प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ दे कैन बैलेंस देयर एनर्जीज, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पेशेंस नहीं है सबसे पहले तो, है ना? दे डोंट हैव पेशेंस।
एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यंग जनरेशन की इज ईटिंग आउट. जो बाहर का खाना उनको बहुत मज़े से खाना है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो इफ़ यू कैन कंट्रोल दैट, बिकॉज ऑफकोर्स फूड कैरीज द एनर्जी, द हम्म. न्यूट्रिएंट्स, जिसके ऊपर हमारा सिर्फ फिजिकल कंट्रोल तो नहीं, बट मेंटल, यू कैन से इमोशनल, यू कैन से एवरीथिंग इज इन कंट्रोल. तो सबसे पहले तो बाहर खाना उनको बंद करना है. ओके. यस, घर पे खाना है. ये काफी बड़ी बात है. Yes, hey, Please go ahead. but Yeah. try this. Mhm. Try this at least for 1 month. I'm telling to this all my audience, including my son sitting there, कि बाहर खाना आप 1 महीने के लिए बंद करो, and then you see the changes in your life, कि आपकी thought process ही change हो जाएगी. Thought process ही change हो जाएगी, and then you will feel like doing some puja and some rituals, and some time मिलेगा तुम्हें वो करने के लिए, because you will start thinking that way. तो ये बाहर खाना बंद करना है. ट्राई टू मेडिटेट, विच इज वेरी डिफिकल्ट. सो नाउ मेडिटेटिंग Yeah. इज नॉट सिटिंग विद दैट जप माला एंड डूइंग सम चैंटिंग. यू कैन यू लिसन व्हाइल ट्रैवलिंग ईयरबड्स डाल करके जब Yeah. हम दूसरा म्यूजिक सुनते हैं. कैन यू मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू 12 नाम ऑफ गणेशा इन अ डे? कैन यू डू दैट? बस इतना सा अगर आप स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट विद दिस, एंड देन यू विल कम टू मी एंड टेल मी मैम व्हाट इज नेक्स्ट. और बताओ मंत्र क्या सुनना है. स्टार्ट योर डे लिसनिंग टू 12 नेम्स ऑफ लॉर्ड गणेशा. सूर्य भगवान को जाकर के प्रे करो, अगर पानी ऑफर नहीं कर सकते हो तो, लाइक इफ यू फील दैट अरे ये सब क्या करना है, सिर्फ गो एंड प्रे, लुक इनटू द आईज ऑफ सन. Definitely you will get the energy of sun, and you will feel powerful. And pay gratitude to the things that you have. Stay focused and of course goal oriented, and manifest. Yeah. So, ma'am, manifestation पे I just want to elaborate थोड़ा. How do you think manifestation works? Because आजकल की generation क्या है? They just make a checklist. वो नहीं हुई तो they become very anxious about it. I used to be like that 2023 तक. But then I decided कि goals को अपने mind में रखते हैं and let's just feel that I'm reaching near to that. अभी मैंने वो list का सब छोड़ दिया है. But how do you think that this young generation can actually manifest and work around See, I'm telling you कि Mhm. घर पे एक पुराना टीवी है, ठीक है, Mhm. चेंज Mhm. करना है, it? बट जब तक वो वहां से जाएगा नहीं ना, तब तक नया टीवी नहीं आएगा. Right. उसको निकाल के देखो पहले, अपने आप Hmm. आएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लटर योर माइंड. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव ऑरा अराउंड यू, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिपिंग, है ना. Hmm. थोड़ा सा स्टे अवे फ्रॉम पार्टिंग, आई कैन से पार्टी Okay. थोड़ा कम करें. एंड मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए. एंड देर इज ऑलवेज अ टाइम टू मैनिफेस्ट. आप है ना रात को 12 बजे बेड पे जाकर के इन दैट cluttered bed you cannot go and manifest. You have to get up early in the morning. This is the first thing I would like to tell to this generation कि 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में Yeah. Hmm. just wake up once. मेरे बोलने पर till this शिवरात्रि try to do this, Yeah. and then you feel the shift in your aura, shift in your energy. You can manifest anything. I can challenge you. Write your wishes behind that wall clock which is there in your room. Hmm. Write it 21 times somewhere in your Yeah. diary and keep it manifestation. अभी जैसे कि ये मैंने से ये पहनी हुई है, ठीक है. राइट इन अ वन वर्ड यू कैन मैनिफेस्ट दैट वर्ड. से यू वांट वेल्थ, Mhm. पैसा, just write money, just write wealth behind this your wristwatch, and watch it every time and manifest it every time. Okay. होगा, वो जरूर होगा. Keep it on your mobile screen. That way you want to earn in dollars, keep picture of dollars will get attracted. That's Definitely. amazing. So, ma'am, like these were the remedies for like young generation and all, but I think this is valid for professionals as well. But उसमें उस तक जाने के लिए I think पहले I want to know the significance of waking up at ब्रह्म मुहूर्तम, because अभी ब्रह्म मुहूर्तम में लोग उठ नहीं रहे हैं, लोग सोने जा रहे हैं. Is what the thing is. That is what ना cycle ही पूरी उल्टी हो Cycle ही रखी पूरी है. उल्टी हो right? गई है. Generation जो है they don't want to listen to their parents, and they don't want to actually follow what our ancestors used to follow. So this is what actually ये खुद पर है. Like really do you want to success, really do you want to prosper, या फिर ये जो slog करना है, स्ट्रगल करना है तो फिर करते रहना. That is the problem. But एक बार करके देखो, just try. I'm saying that I challenge you. You will love to get up. I'm not saying कि 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तो उठो.
या है ना? बट यहाँ पे जो है वर्क फ्रॉम होम लगा है घर पे, एंड अपने टाइम से ऑफिस जाना है, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट विथ ऑल मे बी, बट थोड़ा सा जल्दी उठ के यू हैव टू स्टार्ट प्रेइंग. That's true. So, ma'am, with that, let's come to our next question. जैसे कि you know that the Valentine's week is going on, and this generation knows a very good word which is situationships. Relationships ज़्यादा टिकते नहीं हैं. It may be because of the um, clash of thoughts या टाइमिंग इश्यूज या मे बी वो अटेंशन नहीं दे रहा है, सोशल मीडिया पे तुमने स्टोरी नहीं डाली है वो, एंड वो छोटी छोटी बातों पे ये जनरेशन ब्रेकअप्स तक सिचुएशन आ जाती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि हाउ वी कैन मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स? सी, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये हमारे जनरेशन में भी है. ठीक Okay. है, टाइम नहीं देना एंड छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना. द ओनली डिफरेंस इज द पेशेंस, है ना? हम में वो ताकत है शायद, झेलने की, कि Right. निभाना ही है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आ जाते हैं. बट टुडेज जनरेशन आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. So they are just looking for someone who is really very perfect, जो कभी होता नहीं है, first of all. Yeah. There is nobody perfect. So are you giving 100%? First ask that question to yourself. Are you that much, truthful? है ना? तो if you are not, then how can you expect from that person? बात रही फाइनेंशियल सपोर्ट की, और एल्स टाइमिंग की, या फिर वो पोस्ट डालने की, या फिर वैलेंटाइन पे रोज देने की. एक्चुअली दैट इज नॉट रिलेशनशिप, आई एम टेलिंग यू. So try to create that energy, be productive for each other, try to support each other in the career, or maybe कोई किसी के पास कोई कमी है, किसी के पास कुछ है, but actually you can make a complete union by understanding each other, and that only comes with a little time giving, after giving a time. एक दो साल में you cannot understand, 25 साल निकल जाते हैं Right. to understand a relation. Right. But still we struggle. So in 1 or 2 years how can you actually define your relationship? बट उसके पहले ही, एज यू सेड अर्लियर ऑल्सो, दैट आपका अटेंशन स्पैन ही कम है ना? तो यहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, आप नहीं इतना झेल पा रहे हो किसी सामने वाले को. राइट, दैट्स ट्रू. सो व्हाट डू यू थिंक कि आज की जनरेशन गलत क्या कर रही है? पेशेंस तो ऑफ कोर्स इज वन, बट आई थिंक गिविंग टू मच अटेंशन टू पीपल इज आल्सो, जो ये जनरेशन कर रही है, डिप्रेशन में स्लिप हो रही है. कोई किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा है तो दे आर गेटिंग वेरी भाई, ये एंग्शियस. डिप्रेशन वर्ड है क्या? मुझे पहले कोई बताएगा. हमें क्यों नहीं आया कभी डिप्रेशन? हाँ, इतना काम करने के बाद, सब कुछ संभालने के बाद, व्हाई आर वी नॉट डिप्रेस्ड? मे बी हम लोग रो करके उस डिप्रेशन को कहीं हमने बहा दिया, बट तुम लोगों ने जो है वो रोना नहीं सीखा मे बी, या फिर किसी के साथ शेयर करना नहीं सीखा, एंड दैट लाइज ऑल ओवर हियर, है ना? सो प्रॉब्लम कुछ नहीं है जनरेशन के साथ. बहुत ही इंटेलिजेंट है ये जनरेशन, वो कुछ भी कर सकती है, ये Right. युवा. बट द ओनली थिंग इज दे शुड फॉलो द करेक्ट पाथ. उनको गाइड करने वाला अगर कोई करेक्ट इंसान मिल जाए ना, आई एम टेलिंग यू मुस्कान, तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो. हम कुछ नहीं कर पाए, ये जनरेशन एक्चुअली. दिस जनरेशन कैन एक्चुअली डू वंडर्स, बट दे हैव टू फॉलो द करेक्ट गाइडलाइंस. कोई एक प्रॉपर गाइड, कोई एक योर प्रॉपर गाइड इज ओनली योर पेरेंट्स. फर्स्ट गाइड तो पेरेंट्स ही है, बस उनकी ही 4 बातें सुन लो 10 में से, या you will be on the top of your world. सो मैम, जैसे कि वी वर टॉकिंग अबाउट द टू जनरेशंस एज वेल, व्हाट डू यू थिंक दैट how come your generation was so calm and composed at balancing them? It can be work, it can be relationships as well. क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे पहले. हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था. भाई दिया गया था कि भाई ये पुरानी जो बैग है सिस्टर की, वही यूज करनी है, वही यूनिफॉर्म यूज करना है, वही कपड़े यूज करना है. दिवाली पे इतने ही क्रैकर्स मिलेंगे, यही एक ही जोड़ी कपड़ा मिलेगा, एंड यू हैव टू, बिकॉज एट दैट टाइम, जैसे कि हम 25-30 साल पहले की अगर बात करेंगे, द पर्सन अर्निंग वाज ओनली वन इन द फैमिली. Right. ठीक है, Yeah. नाउ एवरीबडी इज अर्निंग, बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट. कैन यू Yeah. इमेजिन Yeah. कि हमने क्या कर रखा है? लाइक everybody is earning, but still we are not able to suffice our expenses here, I can say. And वहाँ पर एक ही है ना, दादाजी कमाते थे या पापा कमाते थे, and ये पूरा खानदान बैठ करके खाता था. हाँ, that's know true. why? Yeah. Why? Because they followed the discipline, they followed the spiritual path. ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है. लाइक वी आर रनिंग सो फास्ट हियर कि हम भूल जा रहे हैं हमारे रूट्स को. स्टे कनेक्टेड विथ योर रूट्स, है ना? कि क्या हमने अपने दादा और दादी की फोटो को कभी यहाँ पे हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगा घर से निकलने से पहले, या किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले?
नहीं, Hmm. टाइम ही नहीं मिला. मम्मी Right. पापा ने बहुत बार बताया होगा, बट आई थिंक वी फॉरगेट टू डू दैट. आई ऐसा कुछ नहीं होता है. Hmm. नहीं, ऐसा होता है. प्लीज बिलीव दैट. Nice. So I guess we have spoken about all of these things. अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है, मुझे इसके बारे में इसलिए बात करनी है बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समवेयर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. तो आई वांटेड टू आस्क कि डू यू रियली थिंक कि अभी जिस तरीके से यू नो द पीपल आर गोइंग टू महाकुंभ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि काफ़ी चेंज हो गई अब चीज़ें सोशल मीडिया पे डालने लायक ज़्यादा बन गई हैं. और लाइक व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट यू नो शाही स्नान के बाद जब हम उस त्रिवेणी संगम का पानी में जब हम डुबकी लगाते हैं तो ऐसा माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है. यू डोंट यू नो रीबर्थ का जो हमें जो सिस्टम है वो नहीं होता है, या लाइक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. एंड एक्चुअली साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो कुंभ महाकुंभ जो आया है, लाइक Yeah. आफ्टर 12 years 144 years, ना हर 12 साल में जैसे कि Yeah. कुंभ आता है, तो ये 144 years के बाद आया है. ठीक है. Yeah. तो हियर ये जब स्थिति हुई थी उस वक्त सन, प्लैनेट सन एंड प्लैनेट मार्स वेयर इनटू पर्टिकुलर यू कैन से राशि. तो वही फिर से वो योग बने हैं. यू नो यू मस्ट हैव हर्ड some days before that how the parade of the Yeah. planets were there. तो Hmm. वो फिर से बना है इस बार. दैट इज द रीजन वाई यू नो महाकुंभ का जो है आयोजन किया गया है. तो इट इज बिलीव्ड दैट कि गंगा का पानी इतना प्योर है, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है 25% यू नो ज़्यादा है नॉर्मल पानी से. क्यों Yeah. इसको हम मिनरल पानी बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ दैट मिनरल्स. वो सीधा हिमालय के गोद से बह करके आ रही है. इट इज कैरिंग सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स. तो Yeah. उसमें नहाने से साइंटिफिकली आई कैन से अपने जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर अपने जो सेल्स हैं जो जनरेट में भी नहीं हो रहे हैं, Mhm. तो दैट गेट्स प्यूरिफाइड एंड अ पर्सन का जो ऑरा है वो क्लीन हो जाता है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है. और सबसे बड़ी बात एक विश्वास आता है, एक स्ट्रेंथ आता है कि हाँ मैंने महाकुंभ में जो है नहा लिया है, उसका पानी का छिड़काव किया है. तो एक विश्वास जागता है जिससे हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है. सो ये नागा साधुज एंड महाकुंभ का क्या रिलेशन है? लाइक अभी वी आर सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ अखाड़ाज एंड ऑल दैट कमिंग इन प्रयागराज में एंड ऑल दैट. मुझे ये भी जानना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, बल्कि एक्चुअली स्पिरिचुअल रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. See, this नागा साधुस बिलोंग टू एक्चुअली शिव के वो बहुत बड़े भक्त होते हैं. दे आर अंश हैं वो शिव के कहीं ना कहीं. तो एक ऐसा यू नो देर इज़ अ प्लेस इन जूनागढ़ वेयर यू नो दामोदर नदी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर भी महाशिवरात्रि में हंड्रेड्स ऑफ साधु जो हैं वो डुबकी लगाते हैं. बट उसमें से एक साधु जो है वो बाहर नहीं आता है. एंड दैट इज Oh. बिलीव दैट वो लॉर्ड शिवा है. यस. ओके, सो ब्यूटीफुल. उनमें इतना इमेंस पावर है. Okay, that's amazing. So ma'am, because we are talking about Lord Shiva as well, कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे about Lord Shiva, which people don't know, because काफ़ी सारी बातें हैं लॉर्ड शिवा को लेके, कुछ ज़्यादा ही बातें हैं कि किस तरीके से यू नो जैसे कहते हैं कि भभूत लगाना, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मुझे बस इस बारे में जानना था कि कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे अबाउट लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा उनका सबसे पहले उनका नाम है स्वयंभू. उन्होंने अपना खुद ही यू नो उनका जन्म उन्होंने खुद ही किया है. ही इज अ क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ आल्सो. ओके. तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ही क्रिएटेड हिमसेल्फ टू क्रिएट दिस सृष्टि यू कैन से. ठीक है. ओके. So every living creature around, including human beings, are loved by Lord Shiva. कलयुग में अगर you know where is Lord Shiva if you ask me, तो हर एक जीव जंतु में लॉर्ड शिवा है. हर एक ह्यूमन बीइंग जहाँ सांस चल रही है वहाँ लॉर्ड शिवा है, इंक्लूडिंग द प्लांट्स एंड ट्रीज. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज practically and serve those living creatures that are around us. And you know Lord Shiva ही ऐसे हैं जिनका you know संपूर्ण परिवार है. you know शिव परिवार जिसे हम बोलते Yeah. हैं, जहाँ पे लॉर्ड पार्वती हैं एंड हिज सन गणेशा, कार्तिकेय, एंड इफ यू हर्ड अबाउट अशोक सुंदरी, शिवा की, हाँ शिवा की वो बेटी हैं. तो जैसे कि हम यू नो दूध ऑफर करते हैं Right. या पानी ऑफर करते हैं लॉर्ड शिवा को, तो जहाँ से वो पानी जाता है देयर यू विल सी अ साइन ऑफ अ स्नेक इन सम ऑफ द शिवलिंग्स, इन Yeah. सम ऑफ द मंदिर्स Yeah. यू विल सी, नॉट ऑल. तो दैट यू नो दैट symbol is actually of Ashok Sindari. Now Okay. Ashok Sindari is one of the daughters of Lord Shiva.
तो ये माना गया है कि जब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के लिए लॉर्ड शिवा चले जाते थे एंड बहुत तपस्या करते थे, तब पार्वती माँ जो है वो कहीं ना कहीं अकेले रहती थी एंड उनके पास शी वॉज वेरी मच अ पर्सन हु हैड लॉट ऑफ लव, ममता भरी होती थी। तो शी थॉट ऑफ हैविंग अ डॉटर जिनका Okay. नाम उन्होंने अशोक सुंदरी, अशोक इन Okay. शोक को दूर करने वाली। सो Oh. टू फुलफिल हर लोनलीनेस Mhm. she gave birth to Right. her daughter Ashok Sundari, and she is a real, a beautiful, you can say, a देवी जिनके मात्र नाम लेने से या दर्शन करने से या यहाँ पर वहाँ पर दूध चढ़ाने से यू कैन बी ब्यूटिफुल, तो Okay. जिनको ब्यूटी चाहिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिनका रिलेशन एक्चुअली शुक्र वाले Mhm. ग्रहों से हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, व्हाट इज इट, Yeah. शुक्र है वो, तो उनका अगर वो नाम ले लें या फिर शिवरात्रि पे वहाँ पे दूध चढ़ा दें, so their planets gets favorable and give benefit Okay. to their birth chart. That's wonderful. So, ma'am, we spoke about like Lord Ganesha as well in this. Can you tell me some things about Lord Ganesha and also थोड़ा वास्तु perspective से भी, because कुछ लोग होते हैं जो लॉर्ड गणेशा को अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं, जिसे मैंने सुना है कि आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो आपके घर के द्वारपाल नहीं है, Right, आपको right. घर के अंदर लगाना चाहिए। तो उस पे अगर आप लॉर्ड गणेशा पे या थोड़ा वास्तु पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी दे सके तो। So Lord Ganesha बचपन से ही I was my favorite God, मुझे तब तो कुछ ऐसा ये नहीं था, लाइक जैसे कि हमारा गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में इज़ वेरी फेमस, सो आई यूज टू लाइक लव लॉर्ड गणेशा एंड आई यूज टू बी वेरी मच बोलते हैं ना एक्साइटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो गणेशा भगवान जो हैं वो ऐसे हैं, लाइक उनमें प्रॉस्पेरिटी भी है, विद्या भी है एंड जैसे कि उन्होंने वो फेरे लगाकर ही अपने पेरेंट्स को कंप्लीट किया था वर्ल्ड टूर। तो यहाँ पर अगेन आई विल गिव द यंग जनरेशन दैट योर पेरेंट्स अगेन आर द एवरीथिंग फॉर यू। तो उनके बच्चों का नाम जो है वो है शुभ लाभ, बीवियाँ हैं रिद्धि सिद्धि एंड माता लक्ष्मी तो साथ में बैठे ही रहती हैं, Right. है ना, सरस्वती ऑल्सो, बिकॉज ट्रिनिटी जब हम Yeah. प्लेस करते हैं मंदिर में तो Yeah. रहता है। तो लॉर्ड गणेशा हैज all that power, that what I believe is, बट एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि लॉर्ड गणेशा के बैक पर इज दरिद्रता। अच्छा। यस, तो Okay. ये एक मान्यता है कि हमें गणपति भगवान की पीठ का जो है कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। सो व्हेन इट Okay. कम्स टू वास्तु, कि अगर हमें गणपति भगवान का जो है आइडल अगर लगाना भी है घर पे, तो व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली, गणपति पापा तो आपने आगे लगा दिए, Right. बट पीछे क्या है, दरिद्रता, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इनसाइड। Okay. ठीक है, तो इफ देर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू डू दैट, लेट्स नॉट डू इट। अगर नहीं पता है तो प्लीज ऐसे कोई काम ना करें। अगर करना भी है तो यू हैव टू प्लेस इट अबो एंड उसी की सेम साइज की जो है मूर्ति जो है वो पीछे लगा देंगे। सो यू एक्चुअली ब्लॉक द बैक ऑफ लॉर्ड गणेशा, एंड लॉर्ड गणेशा घर के अंदर भी है। Okay. दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस। Okay, that's wonderful. So मैम, लाइक ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है बट स्टिल, जैसे कि हम कुंडलियों की भी बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने इंडियन कल्चर में कोई भी काम बिना कुंडली के नहीं होता है, और कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ मांगलिक, जो उसके बारे में मुझे थोड़ा इसलिए जानना था बिकॉज जब भी दो कुंडलियाँ मिलाई जाती है लोग बड़े कंसर्न हो जाते हैं अगर एक मांगलिक होता है, और ऐसा बोला जाता है कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी करानी चाहिए। यस, क्या उस पर आपका टेक है? तो मांगलिक जब कुंडली में आता है तो दैट पर्सन इज मोर विद एनर्जी। मंगल क्या है, एक एनर्जी है, राइट। हाई पावर एनर्जी है, ठीक है, मार्स प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा उनमें पावर होता है ना, लाइक एग्रेशन बोलो या फिर अंदर की स्पिरिट बोलो, हर चीज़ उनको लाइक ऐसे पावर के साथ करनी होती है। तो इफ दैट पर्सन, अपोजिट पर्सन इज नॉट मांगलिक, तो वो उसमें वो एनर्जी नहीं है, तो वो बैलेंस करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ मांगलिक पार्टनर। ओके, दैट इज हाउ इट इज। तो ऑफ कोर्स कुंडली दिखाने से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, एंड इफ यू फेल इन लव विद अ पर्सन हु इज मांगलिक, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू परफॉर्म सम पूजास एंड सम रिचुअल्स हैज टू बी डन। सो बट स्टिल देयर आर हाई चांसेस कि वो शादी नहीं टिक पाती है। ओह, ओके। सो मैम, लाइक सिंस महाशिवरात्रि इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द कॉर्नर, बस आने ही वाला है, तो कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को विच दे नीड टू टेक केयर ऑफ ऑन द डे ऑफ महाशिवरात्रि, क्योंकि पहली चीज़ जो लोग करते हैं वो सुबह मंदिर भागते हैं, बट देर आर सम प्रोटोकॉल्स ऑल्सो दैट दे नीड टू फॉलो वाइल वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा ऑन दैट वेरी स्पेशल डे, तो उसके बारे में कुछ? यस, ऑफ कोर्स सुबह उठकर भागना चाहिए।
है ना, सबसे पहले नंबर हमारा होना चाहिए मॉर्निंग में उठ करके, एंड एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए. दिस इज द डे व्हेन यू कैन बैलेंस ऑल योर प्लैनेट्स फॉर द एंटायर ईयर, आई एम टेलिंग यू. ओके. एंड कच्चे दूध में क्या क्या डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स, दैट हैज ऑल्सो टू बी फॉलोड. ओके. Okay, and it is very, a big list if I'll, sit and tell you here. लेकिन yes, we should do it. कुछ नहीं तो कच्चा दूध, पानी, काले तिल, बेल पत्र, धतूरा, ये तो शंकर भगवान को हमें उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए. बिकॉज शिवरात्रि है, वो रात्रि, फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिन से ज्यादा रात का इंपॉर्टेंस है. एंड इट इज बिलीव्ड कि उस रात को हमें सोना नहीं है, बिकॉज Okay. ड्यूरिंग दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एनिवर्सरी है, राइट? इट इज Right. Yeah. देयर एनिवर्सरी. तो वो जो है वो बहुत ही, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग दैट नाइट. ठीक है. एंड इफ वी स्लीप तो वो कैसे देगा? तो देर आर सम कॉस्मिक एनर्जी दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग दैट नाइट, जिसके हमारे बॉडी में यहाँ से इस चक्र से जाने से पूरे सारे चक्र में जब वो एनर्जी जाएगी तो फॉर एंटायर ईयर यू विल फील एनर्जेटिक. कोई बीमारी आनी होगी तो भी छू के चली जाएगी, Okay. बट सोना नहीं है उस रात. वो रात अच्छा. जो है वो जागरण की रात है. ये मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि हो सके तो उस रात को बैठ करके कोई मूवी देख लो, कोई गपशप लगा लो, एंड किसी अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो. आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के जपमाला करो या फिर कोई पूजा या ये करो, बड़ा वो कराओ, लेकिन येस यू कैन रिमेन अवेक. Nice, beautiful. So, ma'am, there's about this one more god I want to talk about, which is like Kal Bhairav. बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं. ऑल्सो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने व्हेन आई वाज विजिटिंग वाराणसी, वहाँ पे काल भैरव जी का एक मंदिर है, और ऐसा माना गया है कि आपकी पूरे बनारस की ट्रिप तभी बनती है जब भैरव बाबा चाहते हैं और आपको मैंडेटरी है कि आपको वहाँ जाना है. एंड सेम गोज फॉर जब हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, तभी भी वो यात्रा तभी पूरी होती है. और बहुत लोग काल भैरव जी की मूर्ति भी अपने दरवाजे पे लगाते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो एक ईविल प्रोटेक्टर है. उस पे आपका क्या मानना है? इस काल भैरव जो है वो एक रौद्र रूप है शिवा का, एंड वो नेगेटिव एनर्जीज से हमें दूर रखते हैं. एंड उनकी पूजा करने से यू कैन गेट दैट करेज. जो चीज़ें हम लाइक प्रॉपर्टी लेनी है बट नहीं ले पा रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, वर्शिप काल भैरव. ओके. यस, काला भैरव अष्टमी पे जाकर के उनका फेवरेट प्रसाद है अल्कोहल. यस. आई गेस तो- एमपी में एक टेम्पल भी है वेयर यू हम्म. एक्चुअली लाइक बॉटल्स लगी हुई होती है. व्हेन यू हाँ. एक्चुअली एंटर द टेम्पल, दे पुट इट एक प्लेट में एंड दे गिव इट, एंड आई डोंट नो वहाँ पे किस तरीके क्या है, बट वो पूरा खत्म हो जाता है वहाँ पे अल्कोहल, व्हाटएवर यू गिव, बट दैट इज अ रिचुअल दे फॉलो, अल्कोहल देना. यस, कुछ नहीं देना मीन्स यू जस्ट सर्व. जैसे Yeah. हम भगवान को, जैसे कि हर एक भगवान का एक फेवरेट फूड आइटम होता है, तो काल भैरव का जो है मे बी ये है, तो हमें ये ज़रूर उनको चढ़ाना चाहिए. Okay. So I guess with that I come to my last question, ma'am. नया साल है 2025, बहुत सारे predictions हैं for a very different राशिज and all. I just want to know some predictions that you feel कि ये हो सकते हैं for this so and so राशि in the year 2025. I will tell you in general first of all. Perfect. 2025 comes to number 9 जो Yeah. मंगल का साल है, and the first thing that you have to do, कुछ होए चाहे ना होए, है ना, जाकर के ब्लड डोनेट कर दो Okay. दिस ईयर. कोई भी नंबर हो, कुंडली दिखाओ ना दिखाओ, न्यूमरोलॉजी कराओ ना कराओ, ब्लड डोनेट कर दो. हो सके तो 3 बार करो. एक बार अभी फेब में करा दो, जून जुलाई, एंड देन इन दिसंबर, Okay. है ना. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो नहीं आएगी, बट आकर के चली चली जाएगी, जाएगी. है ना. एंड इट इज़ एन एग्रेसिव नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस नंबर में. बट अगेन मंगल जो है इट इज़ अ डिसिप्लिनरी प्लैनेट. उसको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए. Okay. ही इज एक्चुअली लाइक्स इफ यू गिव इट टू समवन तो निकाल करके दो. डोनेट एवरी डे समथिंग और दी अदर. मंगलवार के दिन जिसने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया तो उसकी प्रॉपर्टी इस साल जरूर बननी है. Okay. यस, स्टे कनेक्टेड टू Your roots. या रूट्स. Beautiful. Amazing. सो गोइंग फर्दर अबाउट मंगल इफ आई से, तो इस साल अगर जो प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ फॉलो सम रेमेडीज़, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में खाना, एंड लॉर्ड गणेशा को जो है 21 लड्डुओं का भोग लगाना है एवरी गणेश चतुर्थी और एवरी ट्यूसडे और वेनेसडे. एंड विजिट
लॉर्ड गणेशा टेम्पल एज मच एज पॉसिबल, पीछे लग जाओ बस, एंड प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी. एंड देर आर हाई चांसेस के डिवोर्स ज़्यादा होंगे. सो Okay. ज़्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज एग्रेशन कम्स आउट ऑफ योर Yeah. वर्ड्स. Right. ठीक है. Right. तो अगर है तो कुछ इग्नोर अगर हम कर सकते हैं तो देर आर हाई चांसेस के रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हों, बिकॉज मंगल इज रेड Right. ब्लड, है ना. Right. इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि डोनेट ब्लड, है ना. पहले ही सरेंडर कर दो धरती माँ को Right. बाय डोनेटिंग ब्लड. सो अगर उंगली कटने वाली होगी तो नाखून कट के निकल जाएगा, लाइक दैट इट इज़. तो बट करना है, यू शुड ऑलवेज गिव, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. एंड यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि वो सन के वेरी क्लोज हैं. अगर सन इज राजा तो मंगल इज मंत्री, है ना. तो ही फॉलोज द डिसिप्लिन ऑफ राजा ऑल्सो, है ना. तो Okay. राजा को खुश करो, मंत्री तो अपने आप खुश हो जाएंगे. सुबह जल्दी उठो एंड Nice. सूर्य भगवान को पानी दो, जैसे मैंने पहले भी बताया. एंड संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो. एंड ट्यूसडे के दिन हो सके तो रेड चीज़ों का दान करो, जैसे कि टमाटर हो गए या फिर रेड चिली पाउडर हो गया. इन चीज़ों का दान करने से भी हमारा मंगल जो है वो बैलेंस रहेगा. ओके, सो एड ऑन टू दिस ऑल द रेमेडीज आई वुड से कि घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर सुननी है. अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुन लो. एंड हनुमान जी के दर्शन जो है वो हर बार करने चाहिए. मीठे पान का भोग लगाना चाहिए. शनिवार के दिन फिर से वो ऑरेंज सिंदूर एंड जैस्मिन ऑयल जो है वो मिक्स करके हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए. एंड शनि देव की बहुत ज़्यादा चाहिए हमें. In my organization Sarvakarishu Sarvada, I always keep on giving remedies to my stay connected to your बस उनकी करना ही क्या है. यू हैव टू गो एंड प्रे देम. जो उनको पसंद है उसका भोग लगाओ. उनको ये है कि किसी को खाने से पहले खिलाओ. सो इट्स थिंग, इट्स अ थिंग टू डू, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट डूइंग दिस. Perfect. Thank you so much, ma'am, for the show and give us your valuable time. Got a lot of mythology, a lot of gods, a lot of remedies, which will surely help people a lot. So thank you so much, guys. Make sure that you like, share, and subscribe this video. Thank you.